Welcome class 8 in English class. We are going to start chapter first from the book of Flex. This is a story about a tiger, and this story is written by well-known poet, writer Ruskin Bond, who usually writes upon the nature. Today, we will know about a tiger and its mischiefs. Everyone knows that tiger has become an endangered species. It should not be hunted, and government has put a ban on it. The reason we all know that it is our national animal and it has left few in the world. So we should all together conserve it, save it and flourish it. So let's start the story. Cub was discovered by grandfather on a hunting expedition in the Terai jungle near Dehra. Grandfather was no shikari, but as he knew the forests of the Shivalik, Hills better than most people, he was persuaded to accompany the party. It consisted of several very important persons from Delhi to advise on the terrain and the direction the beaters should take once a tiger had been spotted. ये कहानी जो स्नोफ्लेक्स बुक के चैप्टर फर्स्ट में दी गई है वो है ए टाइगर इन द हाउस, जिसको लिखा है बहुत ही फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड ने, जो अक्सर प्रकृति के ऊपर और गांव से जुड़े हुए मुद्दों पर लिखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टाइगर अब एक ऐसे परिस्थिति में पहुंच चुका है जहां वो विलुप्त होने वाला है, यानी कि अब खत्म होने वाला है, इसलिए एंडेंजर्ड स्पेसीज में रखा गया है। भारत सरकार ने इस पर रोक लगाई है, इसके शिकार पर। कारण हम सभी को मालूम है कि इसे हमारा राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। इस कहानी में हम देखते हैं कि एक टाइगर का बच्चा, जिसे दादाजी ने शिकार के दौरान देहरा के निकट तेराई के जंगलों में पाया था। दादाजी कोई शिकारी नहीं थे, लेकिन वो शिवालिक पहाड़ियों के ऊपर मौजूद जंगलों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। एक बार उन्हें एक शिकारी दल का साथ देने के लिए कहा गया था, जिसमें कई महत्वपूर्ण व्यक्ति दिल्ली से आए हुए थे। इनको सलाह दी गई थी कि इस शिकारी पार्टी में जो बीटर्स हैं, जो ढोल नगाड़े वगैरह बजाते हैं जानवरों को भगाने के लिए, उनका साथ दें, उनको रास्ता दिखाएं, तब तक जब तक कि कोई बाघ न मिल जाए। The camp itself was sumptuous. 7 large tents, one for each shikari, a dining tent and a number of servants' tents. The dinner was very good, as grandfather admitted afterwards. It was not often that one saw hot water plates, finger glasses, and 7 or 8 courses
in a tent in the jungle. But that was how things were done in the days of the viceroys. There were also some 15 elephants, 4 of them with howdahs for the shikaris, and the others specially trained for taking part in the beat. जंगल में ये टेंट जो लगा अपने आप में बहुत अनोखा था। 7 बड़े बड़े टेंट लगाए गए थे। हर टेंट में एक शिकारी को जगह दी गई थी। एक टेंट सिर्फ डाइनिंग टेंट था, यानी कि खाना खाने का, और कई सारे नौकर थे इन टेंट्स में, तंबुओं में। डिनर बहुत बढ़िया था, जैसा कि दादाजी ने बाद में बताया, और इस तरह की चीज़ें जल्दी देखने को नहीं मिलती है। उन्होंने देखा था कि हाथ धोने के लिए गर्म पानी के कटोरे थे, ग्लासेस थे, 7 या 8 डिशेस थी, वो भी जंगल के बीच टेंट में। ये बहुत ही अकल्पनीय था, बट दैट वॉज हाउ थिंग्स वर डन। लेकिन ये जो चीज़ें थीं ये उन दिनों की जाती थी जब इंडिया में वाइसरॉयज हुआ करते थे। इन शिकारी दल में लगभग 15 हाथी थे, जिसमें से 4 की पीठ पर हौदा बंधा हुआ था, बैठने वाला गद्दी शिकारियों के लिए, और कुछ जो हाथी थे वो बहुत ही ट्रेंड किए हुए हाथी थे और इस बीट में हिस्सा लेने वाले थे। The sportsmen never saw a tiger, nor did they shoot anything else, though they saw a number of deer, peacock, and wild boar. They were giving up all hope of finding a tiger, and were beginning to shoot at jackals, when grandfather, strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, discovered a little tiger about 18 inches long, hiding among the intricate roots of a banyan tree. Grandfather picked him up and brought him home after the camp had broken up. He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game, dead or alive. जो लोग भी शिकारी थे इस दल के, उन्होंने अभी तक कोई भी बाघ नहीं देखा था, और ना ही उन्होंने किसी जानवर का शिकार किया था। हालांकि उन्हें कई सारे हिरन दिखे, मोर दिखे, जंगली भालू दिखे। अब वो लोग उम्मीद छोड़ जा रहे थे कि शायद उन्हें कोई बाघ नहीं मिलेगा, और अब उनका मन छोटे छोटे सियारों का शिकार करने का मन होने लगा था। लेकिन तभी दादाजी जंगल की पगडंडियों पर अकेले ही इस शिकारी पार्टी से अलग होकर आगे बढ़ रहे थे, जब उन्होंने एक छोटे से बाघ को देखा, लगभग 18 इंच लंबा, जो कि एक बरगद के जड़ों के बीच में छिपा हुआ था। दादाजी ने उसे गोदी में उठाया और उसे घर ले आए जब कैंप वहाँ से हट गया था। दादाजी एकमात्र आदमी थे जिन्हें कोई शिकार मिला था, जिंदा या मुर्दा। At first, the tiger cub, who was named Timothy by grandmother, was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook Mahmood. But the milk proved too rich for him, and he was put on a diet of raw mutton and cod liver oil, to be followed later by a more tempting diet of pigeons and rabbits. बाघ का जो बच्चा था, जिसका नाम दादी जी ने तिमोथी रखा था, वह शुरू में दूध के ऊपर टिका हुआ था। उसे बोतल से दूध पिलाता था जो हमारा रसोइया था महमूद। लेकिन दूध जो है उसके लिए बहुत भारी चीज़ था, वो दूध पचा नहीं पाता था,
और इसीलिए उसको फिर बाद में कच्चा मांस दिया जाने लगा, कॉड लिवर ऑयल दिया जाने लगा। फिर बाद में उसके खाने में कई दूसरी मज़ेदार चीज़ें जुड़ गईं और ये मज़ेदार चीज़ों में कबूतर और खरगोश थे। तिमोथी के साथ 2 और कंपेनियंस जुड़ गए। इसमें एक बंदर था जिसका नाम टोटो था, जो इतना शरारती था कि वह उस बाघ के बच्चे की पूंछ अक्सर खींच लिया करता था और फिर दौड़कर पर्दों पर चढ़ जाता था अगर तिमोथी को गुस्सा आता था। और फिर एक मॉन्ग्रेल पप्पी था, कुत्ते का बच्चा, जिसे रोड पर से दादाजी ने उठाया था। शुरू शुरू में तिमोथी उस कुत्ते के बच्चे से बड़ा डरता था और जैसे ही वो कुत्ते का बच्चा तिमोथी के पास आता था, तिमोथी दौड़कर भाग जाता था। वह अपने पंजों से कई बार उसे रोकने की कोशिश करता था, लेकिन फिर वह डर कर पीछे हटता था और उससे एक सुरक्षित दूरी बना लेता था। बाद में जब दोनों में दोस्ती हो गई, तब फिर उसने उस कुत्ते के बच्चे यानी कि अपने दोस्त को वह अपनी पीठ पर चढ़ने देने लगा। One of Timothy's favorite amusements was to stalk anyone who would play with him. And so when I came to live with grandfather, I became one of the tiger's favorites. With a crafty look in his glittering eyes and his body crouching, he would creep closer and close to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over on his back and kicking with delight, and pretending to bite my ankles. तिमोथी का जो सबसे पसंदीदा खेल था वो था किसी के साथ भी खेलना। जो भी उसके साथ खेलने की कोशिश करता था वो उसके साथ दोस्त हो जाता था। इसलिए जब मैं दादाजी के पास रहने के लिए आया तो मैं उस बाघ का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। बाघ की आंखों में एक अनोखी चमक थी, बड़ा खूबसूरत दिखता था और उसका जो बॉडी था वह बड़ा सुंदर था और वो अक्सर मेरे पास नज़दीक और बहुत नज़दीक आता था और फिर अचानक से वह मेरे पैरों पर गिरकर अपने पीठ के बल लुढ़कने लगता था और मुझे खुशी के मारे अपने पंजों से मारता था और कोशिश करता था मेरे एड़ी को चबाने की। He was by this time the size of a full-grown retriever, and when I took him out for walks, people on the road would give us a wide berth. When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with him. His favorite place in the house was the drawing room, and he would make himself comfortable on the long sofa, reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off. समय के साथ अब तिमोथी पूरा जवान हो चुका था, बदन उसका फैल गया था और जब मैं उसे घुमाने के लिए लेकर निकलता था तो लोग सड़कों पर रास्ता छोड़ देते थे और जब वो मुझे खींचता था और मुझे उसे खींचना पड़ता था तो मुझे बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि अब वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो गया था। घर में उसकी सबसे पसंदीदा जगह घर का ड्राइंग रूम था, जहां वो लंबे से सोफे पर पैर फैलाकर बहुत ही रॉयल अंदाज में बैठा करता था और जो कोई उसको सोफे से हटाने की कोशिश करता वह उस पर गुर्राने लगता था।
तिमोथी की कुछ आदतें बहुत अच्छी थी, खास करके साफ सफाई की। वह अक्सर अपने पंजों से अपने चेहरे को साफ किया करता था, ठीक उसी तरह से जैसे बिल्लियां किया करती हैं। रात में वो हमारे रसोइये के क्वार्टर में सोता था और सुबह को बड़ा खुश होता था जब उसे छोड़ा जाता था। इन दिनों दादी जी, जो कि तिमोथी को बहुत गौर से देखा करती थी, उन्होंने संतों वाली भाषा में ये घोषणा कर दी कि जल्दी ही हम लोग तिमोथी को महमूद यानी कि हमारे रसोइये के बिस्तर पर देखेंगे और सब कुछ दिखेगा, उसके कपड़े और जूते, लेकिन महमूद नहीं दिखेगा। हालांकि ये दिन अभी तक नहीं आया, लेकिन तिमोथी अब 6 महीने का हो चुका था और उसमें भी कुछ बदलाव आने शुरू हो गए थे। वह अब कम दोस्ती करना पसंद करता था और जब उसको घुमाने के लिए मैं ले जाता था, वो अक्सर अगल बगल की बिल्लियों पर या किसी के पालतू जानवर पर अटैक करने की कोशिश करता था। Sometimes at night we would hear frenzied cackling from the poultry house, and in the morning there would be feathers lying all over the veranda. Timothy had to be chained up more often. And finally, when he began to stalk Mahmud about the house with what looked like villainous intent, grandfather decided it was time to transfer him to a zoo. कभी कभी हमें रात में मुर्गियों के बाड़े से उनके चिल्लाने की आवाज़ आती थी और सुबह में उनके पंख पूरे बरामदा में फैले होते थे। इस वजह से तिमोथी को अब ज़्यादातर चेन में बांधकर रखा जाने लगा और आखिरकार जब उसने महमूद के ऊपर अटैक करने की कोशिश की उसके घर के पास, तब दादाजी ने फैसला किया कि अब इसे जू में, चिड़ियाघर में भेज देना चाहिए, क्योंकि अब ये एक विलेन का रुख अख्तियार कर रहा था, विलेन बनता जा रहा था। नज़दीक में जो चिड़ियाघर था वो लखनऊ में था, लगभग 200 मील दूर। दादाजी ने एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट बुक किया, क्योंकि तिमोथी के साथ कोई और बैठना पसंद नहीं कर रहा था। दादाजी जब लखनऊ पहुँचे तो वहाँ चिड़ियाघर के अधिकारी बड़ा खुश हुए इतना सुंदर और घरेलू बाघ को पाकर। लगभग 6 महीने के बाद जब मेरे दादा दादी लखनऊ गए किसी रिश्तेदार से मिलने, तो दादाजी ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए चिड़ियाघर जाकर तिमोथी को देखने का फैसला किया। मैं उनके साथ नहीं था, लेकिन जब दादाजी वापस देहरा आए थे, लौटे, तो उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। चिड़ियाघर पहुंचकर दादाजी सीधे उस पिंजड़े की तरफ बढ़े जो तिमोथी का था, जिसमें तिमोथी को रखा गया था। वह बाघ वहाँ पर कोने में बहुत ही खूबसूरत, पूरी तरह से जवान, और उसके बदन पर धारीदार कोट बहुत खूबसूरत लग रहा था। दादाजी ने पिंजड़े के पास पहुंचकर उसे आवाज़ लगाई, हेलो तिमोथी। और दादाजी रेलिंग पर चढ़कर बहुत आराम से अपनी बाहों को पिंजड़े के अंदर डाल दिया। The tiger approached the bars and allowed grandfather to put both hands around his head. Grandfather stroked the tiger's forehead and tickled his ear, and whenever he growled, smacked him across the mouth, which was his old way of keeping him quiet. जैसे ही बाघ
सलाखों के पास पहुंचा, उसने दादाजी को दोनों हाथ उसके गर्दन पे, उसके सर पे रखने का परमिशन दे दिया। यानी कि उसने दादाजी के साथ बहुत ही दोस्ताना व्यवहार किया। दादाजी ने भी बाघ के सर पर अपना हाथ प्यार से फेरा, उसके कान सहलाए, और जब वो गुर्राने लगता था तो उसके मुंह में अपनी बाहें डाल देते थे, जो कि उसको चुप कराने का सबसे पुराना तरीका था।